Assalamu alaikum dear students. On the behalf of Garrison Academy Senior Campus Kosawala Kent, I am Muhammad Shahirul Islam. Your math teacher is a part of online support program by Abjects. Today we discuss exercise 9.2 question number 7. Remaining question of this exercise only question number 7 and 8 or one of them we solve it. Question number 7. If tan theta is equal to 1 over 7 radical. If tan theta is equal to 1 by 7 radical and the terminal arm of the angle is not in third quadrant. Find the value of this. So first of all we locate the angle. तो एंगल के बारे में उसने बताया कि एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी लोकेट इट कि एंगल किस क्वाड्रेंट में है. क्लियर. हियर द वैल्यू ऑफ tan इज पॉजिटिव. अब tan किस किस में पॉजिटिव होता है? फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट. बट इट इज गिवन दैट कि एंगल इज नॉट इन थर्ड क्वाड्रेंट, सो एंगल इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. क्लियर कि tan थीटा जो है इसकी वैल्यू पॉजिटिव है एस tan theta is positive in first and third quadrant, but it is given that theta is not in third quadrant, so it lies in first quadrant first. ओके, क्योंकि tan की वैल्यू पॉजिटिव है और पॉजिटिव कहाँ होती है? फर्स्ट में और थर्ड में, और हमारे पास जो स्टेटमेंट में गिवन है वो थर्ड में नहीं है, तो फिर किस में होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे. तो यू नो दैट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट आर पॉजिटिव. ओके, सो वी फाइंड ओनली cosecant and secant, the value of cosecant and secant. Here we make a triangle, base, perpendicular and hypotenuse. Here tan is equal to perpendicular over base. So perpendicular is equal to 1 and base is equal to radical 7 by Pythagoras theorem. Hypotenuse square, base square plus perpendicular square. तो base की वैल्यू 7 और perpendicular की वैल्यू 1. So it is 7 plus 1, it is 8. The hypotenuse is that radical square root of 8. Okay, radical 8. तो अब हमारे पास ये थ्री साइड्स की वैल्यू गिवन. अब हम इजीली कोसिकेंट और सीकेंट की वैल्यू फाइंड कर लेंगे. सो cosecant theta is equal to hypotenuse over perpendicular. क्योंकि cosecant है it is reciprocal of sine. साइन का ये रेसिप्रोकल है, साइन का फॉर्मूला है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज. तो cosecant का उसका रेसिप्रोकल है तो हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर आ जाएगा. बिकॉज it is given that the theta lie in first quadrant. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये आपके पास कोसिकेंट भी पॉजिटिव होगा और सेकेंड भी पॉजिटिव होगा. सो द वैल्यू ऑफ कोसिकेंट इज पॉजिटिव, हाइपोटेन्यूज इज 8 रेडिकल और परपेंडिकुलर इज 1, सो इट इज 8 रेडिकल. ओके, एंड द सेकेंड थीटा इज हाइपोटेन्यूज ओवर बेस. क्योंकि ये cos का रेसिप्रोकल है और cos का फार्मूला है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो उसका रेसिप्रोकल आप सेकेंड बनेगा आपके पास. तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? 8 रेडिकल और बेस की वैल्यू आपके पास 7 रेडिकल. ओके, we use these two values and we find
the value of, now we find cosecant square minus secant square over cosecant square plus secant square. इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है. पुटिंग these two values, cosecant is equal to 8 radical and secant is equal to 8 over 7 radical. Okay, putting values 8 radical whole square minus 8 radical over 7 radical whole square, same as 8 radical whole square plus 8 radical over 7 radical whole square. Simplifying 8 minus 8 by 7 and 8 plus 8 by 7. Take LCM. LCM is 7. 56 minus 8 and also LCM is 7. 56 plus 8. 7 7 से cut. So 56 minus 8 it is 48 and 56 plus 8 it is 64. Cancelling these, 16 3s are and 16 4s are. This is the value of given question. This is your answer. Okay. Question number 8. This is your assignment. इसको आप as assignment question complete कीजिएगा. Next topic is find the value of trigonometric function of the angles 45 degree, 30 degree and 60 degree and also 0 degree quadrantal angles 90, 180, 270 and 360 degree. Okay. तो ये ऑलरेडी इनकी वैल्यूज आप लोग मैट्रिक में पढ़ चुके हैं. तो यहाँ पे आप कैलकुलेटर के साथ इसको सॉल्व कर लीजिएगा. एक्सरसाइज पे आते हैं 9.3. इजी एक्सरसाइज है. एक्सरसाइज 9.3 साइन 30, ये ऑलरेडी आप जानते हैं 1/2 है. कॉस 30 रेडिकल 3/2 है और ये जो साइन 30 है ये cos 60 के इक्वल भी होता है. ओके, और ये cos 30 जो है ये साइन 60 के इक्वल भी होता है. ओके, सिमिलरली tan 45 degree it is 1 and sin 45 is equal to cos 45. both value is equal to 1 over 2 radical. Okay, ये वैल्यू आप यूज करेंगे और with the help of these values we verify the following. 9.3 exercise question number 1 है. part number 1, take left hand side sin 60 cos 30 minus cos 60 और sin 30 और इसका आंसर आना चाहिए sin 30 ओनली, यानी sin 30 की वैल्यू 1/2. 1/2 इसका आंसर आना चाहिए. ओके, पुटिंग वैल्यूज sin 30 is equal to sin 60 is equal to radical 3 over 2 multiply cos 30 also radical 3 over 2 minus cos 60 it is 1/2 and sin 30 also 1/2. Solving this, 3 over 4 minus 1/4. Take LCM. 3 minus 1 it is 2/4. It is 1/2. This is left hand side. Right hand side अगर आप सॉल्व करें sin 30 तो इसकी वैल्यू भी आपके पास 1/2 है. सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. जस्ट ये इजी क्वेश्चन है कि आपने जस्ट ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के जो एंगल है 30 है, ये 45 है, 60 है, इनकी वैल्यूज आप कैलकुलेटर से यूज करके आप इनको सॉल्व करेंगे. वेरी इजी क्वेश्चन एंड सिंपलीफाई एंड गेट योर आंसर. ओके, तो इसके पार्ट नंबर 4 पे आए. पार्ट नंबर 4, टेक लेफ्ट हैंड साइड sin square pi by 6 ratio sin square pi by 4 sin square pi by 6 pi by 3 and sin square
पाई/2। ओके, और वेरीफाई करना है आपने, इसका आंसर आना चाहिए 1:2:3:4। ओके, पुटिंग वैल्यूज, आप इसको, ये एंगल जो है ना आपके पास, ये रेडियन में, आप इसको डिग्री में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस कैन बी रिटन एज, तो ये आपको इजी हो जाएगा कि पाई/6 ये किसके इक्वल है इन डिग्री में, तो पाई/6 इट इज 30 डिग्री, और साइन स्क्वायर पाई/4 इट इज 45, एंड साइन स्क्वायर पाई/3 जो है ये 60 है, साइन स्क्वायर 60 डिग्री, एंड लास्ट है पाई/2 इज 90 डिग्री, साइन स्क्वायर 90। तो अब ये कैलकुलेटर से वैल्यू पुट कर लें आप एंड गेट योर आंसर। साइन 30 1/2 है होल स्क्वायर, साइन 45 1/2 रेडिकल है, और साइन 60 जो है रेडिकल 3/2 है होल स्क्वायर, एंड साइन 90 इट इज 1। ओके, ओपन द स्क्वायर एंड सिंपलीफाई एंड गेट योर आंसर। So 1/2 whole square it is 1/4, and 1/2 next 3/4, and next 1, multiplying by 4 by each ratio, क्योंकि इसका एलसीएम 4 है तो 4 से आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। So multiplying, किसी भी रेशियो को आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड, मल्टीप्लाइंग बाय 4। सो 4 मल्टीप्लाई 1/4, 4 मल्टीप्लाई 1/2, 4 मल्टीप्लाई 3/4, एंड 4 मल्टीप्लाई 1। सो 4 and 4 कट इच अदर, 2 2s are, और 4 1s are, so 1:2:3:4 is equal to right hand side। okay, this is next question number 2। इजी है, जस्ट आपने इनकी वैल्यूज पुट करनी है, एवेल्युएट। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर सेकंड। 1 minus tan square pi/3 over 1 plus tan square pi/3। okay, pi/3 is equal to 60 degree। okay, so it can be written as 1 minus tan square 60, डिग्री में कन्वर्ट कर लें, 1 plus tan square 60। okay, putting values here, tan 60 is equal to radical 3। okay, put this value, 1 minus radical 3 whole square and 1 plus radical 3 whole square। okay, this can be written as, simplify 1 minus 3 over 1 plus 3, it is minus 2 over 4, so this is minus 1/2। this is your answer। next question number 3 बिल्कुल इसी तरह ही है, verify the following when theta is equal to 30 and 45। अब आपने हर क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल पुट करेंगे थीटा की वैल्यू 30 और सॉल्व करेंगे, वेरीफाई करेंगे लेफ्ट और राइट, ठीक है, और नेक्स्ट फिर आप थीटा की जगह पे पुट करेंगे थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, और फिर लेफ्ट और राइट उस क्वेश्चन को प्रूव करेंगे। ओके, तो ये वही क्वेश्चन है। एनीवन, इसको लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, एनीवन पार्ट। तो वी सॉल्व पार्ट नंबर 5। tan to theta is equal to 2 theta over 1 minus tan square theta। अब ये क्वेश्चन है कि तो इसको प्रूव करें when put theta is equal to 30 and theta is equal to 45। first of all we put theta is equal to 30 degree, so ये 2 मल्टीप्लाई 30 क्या आ जाएगा 60 डिग्री इज इक्वल टू 10 30 ओवर 1 माइनस tan square 30। पुटिंग वैल्यूज, tan 60 इज इक्वल टू radical 3 is equal to 2 multiply
tan 30 is equal to 1 by radical 3. Okay, over 1 minus 1 by radical 3 whole square. Radical 3 is equal to simplifying 2 over radical 3, ये न्यूमरेटर में आ गया, और 1 minus open the square this 1 by 3, simplifying 2 over radical 3 over LCM लेंगे आप, तो 3 1 is 3 minus 1, it is 2 by 3. Okay, simplifying radical 3 is equal to 2 by radical 3 multiply, अब दिस फ्रैक्शन जो है ये इसका रेसिप्रोकल लेके हम ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो इट इज 3 by 2, 2 2 से कट जाएगा, तो रेडिकल 3 ऑफ इज इक्वल टू 3 ओवर रेडिकल 3, सो 3 इज इक्वल टू रेडिकल 3 मल्टीप्लाई रेडिकल 3, दिस कैन बी रिटन एज, तो रेडिकल 3 इज इक्वल टू 3 रेडिकल मल्टीप्लाई 3 रेडिकल over 3 radical. This is cut, so radical 3 is equal to radical 3 is proved. अब now we put theta is equal to 45. अब ये 30 के साथ प्रूव हो गया ना, अब इसके बाद 45 एंगल आप पुट कर देंगे तो वो भी जो है ना प्रूव हो जाएगा. ओके, तो वेरी इजी, गिवन क्वेश्चन में आप 45 पुट करें, आप 10 सेकंड पार्ट है, tan 2 into theta 45 degree is equal to 2 tan 45 और 1 minus tan square 45. Okay, putting values, it is tan 90 multiply 2 और is equal to 2 into tan 45, it is 1 over 1 minus also it is 1 whole square. So tan 90 is undefined, it is infinity. Okay, is equal to 2 over 1 minus 1, it is 2 over 0, so also undefined. So ये infinity answer, it is proved. Left भी undefined आ गया और राइट भी अनडिफाइंड है. क्लियर है? तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी आप इसको कर लीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 4 पे आए आप. क्वेश्चन नंबर 4 इज इंपॉर्टेंट. To find the value of x if tan square 45 minus cos square 60 is equal to x into sin 45 cos 45 and tan 60. Very easy. x की वैल्यू आपने फाइंड करनी है और गिवन स्टेटमेंट आपके पास है, tan square 45 minus cos square 60 is equal to x into sin 45 cos 45 और tan 60. Okay, now we solve it. Putting the value of tan 45, it is 1, cos 60 it is 1 by 2 whole square is equal to x into sin 45 1 by 2 radical, cos 45 also 1 by 2 radical and tan 60 it is radical 3. हमने तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल की वैल्यू पुट कर दी है, कैलकुलेटर से आप इसको फाइंड कर सकते हैं और फिर आप इसको पुट कर सकते हैं. सिंपलीफाइंग 1 minus 1 over 4 is equal to x into radical 3 over 2. क्लियर? ये radical 3 न्यूमरेटर में आएगा और 2 multiply 2 होल स्क्वायर आ जाएगा और radical कैंसिल 2 आपके पास है. दिस इज LCM है 4 1s are 4 and minus 1 3 by 4, it is 3 by 4 is equal to x into radical 3 by 2. This value shift to left side, it is 3 by 4 multiply 2 by radical 3 is equal to x. So this is cut 3 over 2 into radical 3 is equal to x. क्लियर है? अब 3 को 2 टाइम आप रेडिकल में लिख सकते हैं, रेडिकल 3 over 2 into radical 3. So this is cut. The value of x is equal to radical 3 by 2. This is your answer. Okay. Next question number 5.
Next, we solve question number 5. Find the values of trigonometric function of the following quadrantal angles. Quadrantal angles. What are quadrantal angles? Those angles who falls on x-axis और y-axis. जो x-axis के ऊपर होते हैं या y-axis के ऊपर, वो कौन से? 0 डिग्री, 90, 180, 270 एंड 360. ओके, तो अब आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर क्वाड्रेंटल एंगल आएगा, यानी 0 आ सकता है, 90 आ सकता है, 180, 270 और 360 में से कोई भी एंगल आएगा, उसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है. क्लियर? तो इसमें जस्ट आप एक फॉर्मूला याद रखिएगा, जो कि मैंने कोटर्मिनल एंगल फॉर्मूला आपको बताया हुआ, जनरल एंगल जिसको हम डिस्क्राइब करते हैं. थीटा प्लस 2k पाई r, थीटा प्लस 360 डिग्री k, where k belong to integer. k का ये नंबर ऑफ सर्कल है, टीचर में पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. अगर एंगल की रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है तो k की वैल्यू पॉजिटिव होगी, अगर क्लॉकवाइज है तो k की वैल्यू नेगेटिव होगी. क्लियर है? यदि नेगेटिव एंगल है तो k यहां पे नेगेटिव आएगा, नंबर ऑफ सर्कल नेगेटिव आएगा. क्लियर है? तो ये नेगेटिव एंगल के लिए क्लॉकवाइज यूज होता है, यानी क्लॉकवाइज के लिए नेगेटिव एंगल. ओके, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, 2k पाई के बजाय आप ये यूज करें डिग्री में. दिस इज वेरी इजी. मैं आपको तमाम क्वेश्चन 5 और 6 के एक ही मेथड से करवाता हूं. दिस इज वेरी इजी. जस्ट वी यूज दिस फॉर्मूला, थीटा प्लस 360 डिग्री k. हियर थीटा क्या है? दिस द बेसिक एंगल. ये फाइंड करना है आपने, थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है. याद रखिएगा, ये जो थीटा है ये आपके पास 0 डिग्री आ सकता है, 90 आएगा, यानी क्वाड्रेंट एंगल कोई भी आ सकता है. इसकी वैल्यू फाइंड करें. जो थीटा की वैल्यू फाइंड होगी उस एंगल के आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वैल्यू फाइंड करेंगे. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा. अब थीटा की वैल्यू कौन कौन सी आ सकती है? 0, 90, 180, 270 एंड 360. ओके, इनमें से कोई भी आ सकती है. तो और k क्या है? नंबर ऑफ सर्कल है, और 360 कंप्लीट रोटेशन है, सर्कल है. इसके साथ ये सर्कल जो है ये k के साथ k जो है वो नंबर ऑफ सर्कल है, ये 360 से मल्टीप्लाई होगा, ये 2 सर्कल हो सकता है, 3 सर्कल हो सकता है, 5 एंड सो ऑन, लॉट ऑफ सर्कल हो सकते हैं. तो एक पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा, किसी बेसिक एंगल थीटा में आप एक सर्कल ऐड कर लें या सब्ट्रैक्ट कर लें, 2 सर्कल, 3 सर्कल, लॉट ऑफ, जितने मर्जी सर्कल ऐड कर लें वो थीटा के इक्वल ही होगा. अब उसको थीटा रिटर्न करेंगे. यानी सर्कल क्या है? जिस पॉइंट से स्टार्ट किया उसी पॉइंट पे आके फिर आप एंड कर रहे हैं. इट मीन आप वहीं के वहीं है, यानी बेसिक एंगल के ऊपर ही हैं आप. तो किसी बेसिक एंगल में आप एक सर्कल ऐड कर लें, 2, 3, 4 हजार सर्कल भी ऐड कर लें, उसमें बेसिक में कोई फर्क नहीं आता, वो बेसिक के इक्वल ही होता है. क्लियर? क्योंकि कोटर्मिनल एंगल में जो इनिशियल लाइन और टर्मिनल लाइन होती है वो सेम रहती है, इसलिए उनके जितने भी एंगल बनेंगे वहां से कोटर्मिनल में सर्कल ऐड करते हुए तो वो बेसिक के इक्वली काउंट किए जाते हैं. ओके, तो पार्ट नंबर फर्स्ट ऑफ ऑल 1 वी सॉल्व इट माइनस पाई. अब फर्स्ट ऑफ ऑल इसको डिग्री में चेंज करें, हम हर क्वेश्चन को डिग्री में लाएं तो आपके लिए इजी हो जाएगा. अब ये जो आपके पास एंगल है -180 डिग्री, यहां पे ये पॉजिटिव होना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल नेगेटिव नहीं होना चाहिए यहां पे, क्योंकि जो एंगल थीटा है ना वो पॉजिटिव होना चाहिए. अब ये जो आपके पास है, ये सपोज आपके पास जनरल एंगल है, इसको इस फॉर्मूला की शेप में रिटर्न करेंगे. शेप में रिटर्न करने के बाद थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे. सो इट कैन रिटर्न एज, यानी फॉर्मूला के इक्वल लिखेंगे आप. तो फिर जो एंगल थीटा की वैल्यू आएगी, जो एंगल थीटा की वैल्यू आएगी, यानी गिवन क्वेश्चन को, जो भी गिवन क्वेश्चन है, ये 5 क्वेश्चन और 6 सारे सेम है, एक ही मेथड है. एक क्वेश्चन अच्छा अंडरस्टैंड कर ले, आपके लिए सारे इजी हो जाएंगे. तो सो फॉर ऑल एंगल्स रिटन इन डिग्री फॉर्म, नॉट रेडियन. तो ये आपके लिए इजी, यानी इजी मेथड आपको मैं करवा रहा हूं. वैसे रेडियन में भी ये सॉल्व हो जाते हैं, डोंट वरी. जो गिवन क्वेश्चन है उसको इस फॉर्मूला के इक्वल रिटर्न करें, जनरल एंगल. अब थीटा की वैल्यू निकालें. यहां पे आपने नंबर ऑफ सर्कल पुट करना है, 1, 2, 3 एंड सो ऑन.
नेगेटिव भी हो सकता है और ये पॉजिटिव भी हो सकता है। एक पॉइंट और, अगर आपका गिवन क्वेश्चन नेगेटिव है तो के नेगेटिव होगा, पॉइंट टू बी नोटेड, नंबर ऑफ सर्कल नेगेटिव होगा क्योंकि रोटेशन क्या है, क्लॉकवाइज है, इसलिए ये नेगेटिव है। ओके, तो जब 360 से यहां पे आपका क्वेश्चन लेस होगा तो के आपके पास 1 ही होगा। अगर 360 से ये क्वेश्चन आपका जो है वो ग्रेटर है तो यहां पे के की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 हो सकती है, 2 3 एंड सो ऑन। क्लियर? सो इट कैन बी रिटन एज -180 डिग्री इज इक्वल टू थीटा प्लस 360 डिग्री इनटू -1 पुट k इज इक्वल टू -1। ओके, सॉल्व इट बाय, ये नेगेटिव है इसलिए k जो है क्लॉकवाइज, नंबर ऑफ सर्कल क्लॉकवाइज, ये नेगेटिव होगा। ओके, सॉल्व इट एंड वी फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। तो आपके पास इक्वाड्रेंटल आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा। ओके, थीटा प्लस माइनस माइनस 360 डिग्री, शिफ्ट टू राइट साइड, सो थीटा इज इक्वल टू 360 माइनस 180, इट इज 180। अब ये देखें, ये आपके पास जो थीटा बेसिक एंगल है वो पॉजिटिव आ गया और ये क्वाड्रेंटल है। इसकी वैल्यू अब आपने फाइंड करनी है, ये याद रखिए, इसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है, यानी सो sin 180 cos 180 tan 180, जो वैल्यूज 180 की होगी वही वैल्यूज -180 की होगी। ये पॉइंट याद रखिएगा, जो वही जो यहां पे बेसिक एंगल है, जो इसकी वैल्यूज है वो गिवन क्वेश्चन के इक्वल ही कहलाएगी। तो जस्ट आप इस बेसिक एंगल की वैल्यू बस फाइंड कर ले, वो इसके इक्वल ही कहलाएगा। क्लियर? तो sin 180 जो है वो 0 है, cos 180 -1 है, कैलकुलेटर से आप इसको फाइंड कर सकते हैं, और tan 180 sin बटा cos यानी 0 ओवर -1, इट इज 0। क्लियर? अब ये 3 फंक्शन फाइंड हो गए, रिमेनिंग 3 जो है आप खुद फाइंड कर सकते हैं, यानी sin का जो रेसिप्रोकल है वो कोसिकेंट है, कोसिकेंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं आप, कोसिकेंट 180 और सीकेंट 180 और सिमिलरली cot 180। ओके, तो कोसिकेंट 180 इसका रेसिप्रोकल 1 ओवर 0 अनडिफाइंड हो जाएगा। ओके, और इसका रेसिप्रोकल 1 ओवर -1, इट इज -1, और cot 10 का रेसिप्रोकल 0 cot है तो ये 0 1 ओवर 0, तो ये भी आपके पास अनडिफाइंड है। This is your values of trigonometric function. Okay. Next कोई एक पार्ट हम कर लेते हैं, as you wish. लास्ट पार्ट में करता हूं 9 पार्ट नंबर 9 इंपॉर्टेंट भी है, और ये फेडरल बोर्ड में ये क्वेश्चन एक आ जाता है शॉर्ट पार्ट 4 मार्क्स का, 407/2 पाई। तो यहां पे आप बेसिक एंगल की वैल्यू फाइंड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये पुट कर लें, आप पाई की वैल्यू डिग्री में 180 डिग्री, 407/2 मल्टीप्लाई 180, दिस इज 90, इक्वल हो जाएगा, दिस इज 407 मल्टीप्लाई 407 मल्टीप्लाई 90, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई 36,630 डिग्री। ये वैल्यू आपके पास, ये क्वेश्चन है जी आपके पास एक पॉजिटिव वैल्यू है, और इसको फर्स्ट ऑफ ऑल आप इक्वल लिखेंगे, ये आपके पास जो जनरल एंगल है हियर इज इक्वल टू थीटा प्लस 360 डिग्री के, 366 30 डिग्री इज इक्वल टू थीटा प्लस 360 डिग्री इनटू के। के की वैल्यू अब आपने पुट कर दी है, जस्ट आप इसको मल्टीप्लाई करते जाएं, इसके नियरेस्ट आंसर आना चाहिए, नियरेस्ट। तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 360 को तो 36,000 आ जाएगा, और ये क्या है 36,630, यानी कि इससे भी ग्रेटर है। तो इट मीन 360 को
मल्टीप्लाई करते हैं 101 से। तो ये वैल्यू आपके पास है थीटा प्लस 36,360 डिग्री। ओके, तो इसको शिफ्ट करें लेफ्ट साइड पे, 36,630 माइनस 36,360 डिग्री इज इक्वल टू थीटा। अब इन दोनों को माइनस कर लें हम, माइनस 36,630 इज इक्वल टू 270। सो थीटा इज इक्वल टू 270 डिग्री। ओके, अब ये आपके पास क्वाड्रेंटल एंगल आ गया। अब इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू आप फाइंड करेंगे, sin cos tan और गेट योर आंसर। ओके, सो sin 270 cos 270, ये थ्री वैल्यू जस्ट मैं आपको फाइंड करके दे देता हूं, रिमेनिंग वैल्यू आप खुद फाइंड करेंगे। ओके, इनके रेसिप्रोकल्स। तो sin 270 कैलकुलेटर से यूज करेंगे, आपके पास ये -1 आएगा, cos 270 ये आपके पास 0 आ जाएगा, और tan 270 sin बटा cos यानी -1/0, दिस इज अनडिफाइंड। ओके, तो रिमेनिंग वैल्यू आप फाइंड कर लें। sin का रेसिप्रोकल -1 कोसेकेंट है, तो -1/-1 इज -1। तो cos का रेसिप्रोकल सेकेंट है, तो 1/0 अनडिफाइंड, और tan का रेसिप्रोकल cot है, तो 1/अनडिफाइंड जो है ये 0 के इक्वल हो जाता है। क्लियर है, याद रखिएगा, यानी 1/0 ये अनडिफाइंड है, और 1/इंफिनिटी जो है ये 0 के इक्वल है। ये पॉइंट आप जीरो में रखिएगा। तो रिमेनिंग वैल्यू आप खुद फाइंड कीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 5, ये आप इसके रिमेनिंग पार्ट्स कीजिएगा। कल इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। थैंक यू वेरी मच।